Hello students, how are you? I hope you all are fine. In last video, I have started the topic population and discussed about the characteristics of population. Now in this video, I am going to discuss about the population growth, means on which factors this population growth depends. And also I will discuss about the pattern followed by the growing population. Okay? अब ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर पॉपुलेशन साइज है किसी भी एरिया का, किसी स्पीसीज का, एक गिवन टाइम में 4 फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि वो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, यानी वो एक्सपेंड कर रही है, इंक्रीज करेगी या वो डिक्रीज कर रही होती है। वो जो 4 बेसिक फैक्टर्स हैं या प्रोसेसेस कह सकते हैं उसे, वो है नेटिलिटी, इमिग्रेशन, मोर्टिलिटी एंड इमाइग्रेशन। इसे इस चार्ट से अच्छे से समझ सकते हैं। सपोज ये किसी पर्टिकुलर एरिया का पॉपुलेशन डेंसिटी है। अब पहला फैक्टर या पहला प्रोसेस जो पॉपुलेशन, कहीं की पॉपुलेशन की ग्रोथ को डिसाइड कर रहा है या इन्फ्लुएंस कर रहा है, दैट इज नेटिलिटी। नेटिलिटी इज द नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड टाइम। मीन्स उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर स्पीसीज के एक गिवन टाइम पीरियड में कितने बर्थ्स हो रहे हैं, ये कहलाता है नेटिलिटी। एंड दिस नेटिलिटी यूज्ड टू इंक्रीज द पॉपुलेशन। दैट्स व्हाई दिस एरो मार्क इज डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द पॉपुलेशन डेंसिटी एंड दिस पॉजिटिव sign shows that natality increases the population density. Second is mortality. Mortality is the number of death in the population in a given time period. किसी population में कितने डेथ हुए हैं उसके नंबर को हम कहते हैं mortality, right? And this mortality used to decrease the population density or population size. So this arrow mark is directing away from this population density, and this negative sign represents that mortality used to decrease the population density. Third is immigration. Immigration means number of people who have come into the habitat from other places. कहीं और से जो कुछ ग्रुप लोगों का या इंडिविजुअल्स का अगर उस पॉपुलेशन में आया, कहीं और से माइग्रेट करके आए, उसे हम कहते हैं इमिग्रेशन। तो ये जो इंडिविजुअल्स माइग्रेट करके थ्रू इमिग्रेशन कहीं से वो आए, दे विल add in the population, so they will increase the population density. So this arrow mark is directing towards the population, and this positive sign shows that immigration used to increase the population size or population density. Now last factor is immigration. Means this is the number of people who left that area or left that habitat in a given time period. उस एक टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में हम पॉपुलेशन कैलकुलेट करने वाले, उस टाइम पीरियड में कितने लोग वहां से बाहर गए, मीन्स माइग्रेट करके दे लेफ्ट आउट फ्रॉम दैट हैबिटेट, दैट number is called immigration number. Now this immigration will, since these peoples are leaving that area, means they will decrease the population. This factor will decrease the population. So this arrow mark is directing away from the population density, and this negative sign shows that immigration decreases the population density. We can calculate the change in population density with the particular formula, and this will show, its value will show that particular population is showing the positive growth or negative growth. This n is representing the population density at time t plus 1. This n is representing the population density at time t. B is representing natality, I is representing immigration, D is representing mortality, and E is representing immigration. If we will put the values, and after calculating, if value of B and I, means natality and immigration, is higher than the values of mortality and immigration, then the value will be positive, and this will show that particular
population is showing positive growth, means that population is expanding. And if the value of mortality, means death and immigration, will be higher than the value of birth and immigration, then these, after calculation, value will come in negative, and that will show that the particular population is showing negative growth. Okay, now this population growth will show two types of patterns, that is एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ। मीन्स कोई पॉपुलेशन अगर ग्रो कर रहा है, किसी स्पीसीज का पॉपुलेशन कहीं किसी हैबिटेट में अगर ग्रो कर रहा है, तो वो दो तरह के पैटर्न फॉलो कर सकता है, या तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ। अब किसी भी पॉपुलेशन को ग्रो करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए होती है? वो चाहिए होती है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जैसे फूड, स्पेस, मीन्स जिंदा रहने के लिए खाना और रहने के लिए जगह। अगर इन्वायरमेंट में, किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी हैबिटेट में अगर ये रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, मीन्स अगर ये रिसोर्सेज इतने हैं कि वो अनलिमिटेड पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सके, देन द स्पीसीज प्रेजेंट देयर विल शो द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, राइट। मीन्स वो, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वाटर हाइसिंथ के प्लांट को किसी वाटर बॉडी में, पॉन्ड में या रिवर में डालें और वहाँ पर उस वाटर हाइसिंथ स्पीसीज को, उस प्लांट को बहुत सारा फूड और बहुत सारा स्पेस मिल रहा हो, देन इट विल ग्रो टू इट्स हाईएस्ट पोटेंशियल। वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाएगा अपना। वो स्पीसीज, वो प्लांट क्या होगा, वो रैपिडली ग्रो करेगा और सारे जो स्पेस और सारा जो फूड है उसे रैपिडली यूटिलाइज करेगा, राइट। तो ये जो टाइप का ग्रोथ होता है इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जो रैपिडली ग्रो कर रहा होता है और इन्वायरमेंट में उसे जो रिसोर्सेज चाहिए ग्रो करने के लिए वो अनलिमिटेड है, राइट। अब अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के वक्त जो भी पॉपुलेशन डेंसिटी में चेंजेस आए हैं उससे हम कैलकुलेट करना चाहें तो वी कैन कैलकुलेट इट विद दिस फॉर्मूला, dn/dt इक्वल्स टू b minus t multiplied by n, where n is population density. dn/dt is the change in the population density with time, and b is the birth rate and d is the death rate, right? Now this birth rate and death rate, b minus d, this can be calculated to take out the value of r, means birth rate minus death rate equals to r. What is r here? R is the intrinsic rate of natural increase, means किसी भी species का जो कैपेबिलिटी होती है टू इंक्रीज इट्स पॉपुलेशन, दैट कैपेबिलिटी इज नोन एज इंट्रिंसिक रेट ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ। मीन्स अगर किसी भी एरिया या हैबिटेट या एनवायरमेंट में अगर किसी पॉपुलेशन, कोई भी पॉपुलेशन स्पीसीज की ग्रो कर रही है तो वो दो तरह का पैटर्न शो करती है, या तो वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही होगी, मीन्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाएगी, या फिर इट विल फॉलो द लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है? एग्जैक्टली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में होता ये है कि किसी भी स्पीसीज को ग्रो करने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए होती है? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज लाइक फूड एंड रिसोर्सेज लाइक स्पेस। खाने के लिए खाना भरपूर हो और रहने के लिए जगह चाहिए होती है। तो if in a habitat or in an environment, if the resources are unlimited, अगर अनलिमिटेड अमाउंट में रिसोर्सेज हैं तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन होगी, जो भी स्पीसीज के होंगे, उनकी पॉपुलेशन बहुत ही रैपिडली ग्रो करेगी, पूरी पोटेंशियल, हाईएस्ट पोटेंशियल के साथ ग्रो करेगी। और इस तरह की जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी वाटर बॉडी में वाटर हाइसिंथ जो आइकॉर्निया होता है उसके कुछ प्लांट्स को वहाँ पर प्लांट कर दें, देन अगर उस वाटर हाइसिंथ के थोड़े से प्लांट को बहुत सारा स्पेस और फूड मिले, देन इट विल ग्रो विथ इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल, राइट, और वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करेगा। सो ये जो ग्रोथ होती है पॉपुलेशन में विथ
एंड अनलिमिटेड रिसोर्सेज वो कहलाती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. नाउ इफ we have to calculate the change in the population density during the exponential growth, we can use the formula, this formula, that is dn by dt equals to b minus d multiplied by n, where n is the population density, dn by dt is the change in the population density with time, and b is the birth rate and d is the death rate. अब ये जो birth rate और death rate है, b minus d will give the value of r. r क्या है? r is the intrinsic rate of natural increase. मीन्स किसी भी स्पीसीज की जो एक एबिलिटी होती है अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करने की, with the influence of all the biotic and abiotic factor. सारे बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस के होते हुए भी एक स्पीसीज की अपनी पॉपुलेशन को ग्रो करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. अब ये जो आर की वैल्यू है अगर ज्यादा हुई, कैसे ज्यादा होगी? अगर बर्थ रेट किसी पॉपुलेशन का ज्यादा हो और डेथ रेट कम, दिस विल गिव दी लार्जर वैल्यू ऑफ आर. और जिस भी पॉपुलेशन की आर वैल्यू ज्यादा होती है मीन्स दैट पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, मीन्स वो ग्रो कर रहा होता है. और जिस भी पॉपुलेशन की आर वैल्यू जो है वो कम होगी, देन दैट पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग, राइट. तो फाइनल जो फॉर्मूला आया वो क्या है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, दैट इज dn by dt इक्वल्स टू rn. नाउ विद द बेसिक नॉलेज ऑफ calculus we can find out the integral form of this formula, and that is nt equals to n naught e to the power rt, where nt is the population density at time t, n naught is the population density at time 0, e is the base of the logarithm, and r is the intrinsic rate of natural increase, and t is the time, right. Now if we will draw a graph of exponential growth with the time in x-axis and population density at y-axis, we will get a graph which will be of J-shaped with the two phases. First is lag phase and second is log phase. Lag phase means the initial time where population is not growing rapidly, and after that we will get log phase when population is growing very rapidly, means population density is changing very rapidly. Like in this type of growth or in this type of graph, you can see that this growth of population density is passing out the value of k. Now what is k? K is the carrying capacity of habitat. किसी भी habitat में उसका एनवायरनमेंट जो होता है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर एक कुछ ही नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट कर सकता है अपने रिसोर्सेज से. मीन्स एक हैबिटेट का एनवायरनमेंट जो है वो जितने भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को आसानी से सपोर्ट कर सके बाय प्रोवाइडिंग दी ऑल दी रिसोर्सेज, एंड दैट capability or that capacity is known as the carrying capacity of that environment. For example, अगर किसी विलेज में वहाँ पर जो स्पेस और फूड रिसोर्सेज हैं वहाँ सिर्फ 5000 लोग ही रह सकते हैं. मीन्स वहाँ वो विलेज का जो इन्वायरमेंट है, वो विलेज का जो एरिया है वो सिर्फ 5000 लोगों को ही खाना और रहने की जगह दे सकता है. ये उस विलेज की क्या है? कैरिंग कैपेसिटी है. अगर अब उससे ज़्यादा वहाँ पर लोग गए तो वो विलेज जो है ना वहाँ पर रहने की जगह होगी और ना ही जो बाकी जो एक्स्ट्रा लोग वहाँ गए उन्हें खाना मिलेगा. तो एक पर्टिकुलर हैबिटेट की, नेचर में भी एक हर हैबिटेट की जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उसकी एक पर्टिकुलर कैरिंग कैपेसिटी होती है, राइट. अब नेक्स्ट है लॉजिस्टिक ग्रोथ. ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है, अभी हमने बात की कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होता है. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तब होता है जब रिसोर्सेज जो हैं वो अनलिमिटेड हो, राइट.
this results into unlimited resources results into exponential growth. but क्या ये सही है? नहीं. नेचर जो है अपने हैबिटेट में बहुत ऐसे कम ही रिसोर्सेज उसके पास, नेचर में हर एक हैबिटेट की अपनी कैरिंग कैपेसिटी होती है, एंड हैबिटेट हैज रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ सर्टेन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन. वो उससे ज्यादा अगर ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो वो सपोर्ट नहीं कर सकता. वही तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है. मीन्स नेचर में हर हैबिटेट की जो है एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, और ये ही लॉजिकल है. कहीं भी नेचर में, कहीं भी किसी भी एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड नहीं होते. हमेशा नेचर में जो एनवायरनमेंट जो है, जो हैबिटेट है, वहां पे रिसोर्सेज लिमिटेड अमाउंट में ही रहती हैं, राइट. तो वहां जब ग्रोथ हो, अब ये सारे रिसोर्सेज के लिमिटेड होने के बाद जब पॉपुलेशन ग्रो करेगी, देन दैट पॉपुलेशन विल शो अ लॉजिस्टिक ग्रोथ. And if we will plot a graph between time and population density, then we will see that the growth curve, a type of growth curve which we will get is a S-type growth curve. This is also called sigmoid curve, where 3 phases are there. First is lag phase, right? This is lag phase, then log phase, and after that it is the stable phase, means where no growth is occurring. means पहला वो फेज जहां पर जो ग्रोथ है वो स्लो है. देन लॉग फेज आता है जहां पर रैपिड ग्रोथ हुई, मीन्स जो भी रिसोर्सेज हैं उसे स्पीसीज जो हैं वो पूरी तरह से उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं. और लास्टली एक ऐसा स्टेज आता है जहां पर पॉपुलेशन जो है वो ग्रो करती करती उस हैबिटेट या उस एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाती है. अब इसके बाद पॉपुलेशन जो है वो वहां पर ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि इसके बाद वो हैबिटेट उस पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर सकता विथ इट्स रिसोर्सेज. ओके. और अगर इस लॉजिस्टिक ग्रोथ में हम लोग कैलकुलेट करना चाहें change in population density, then we can calculate with this formula, that is dn by dt equals to rn multiplied by k minus n upon k, where n is initial population density, dn by dt is change in population density, r is the intrinsic rate of natural increase, k is the carrying capacity. This logistic growth is also called as Wurst-Pearl logistic growth. Means इस logistic growth का दूसरा नाम है Wurst-Pearl logistic growth. अब ये नाम क्यों है? Because 2 scientists, Wurst and Pearl, invented this logistic growth model of population. And in between exponential growth and logistic growth is the more real growth which is present in the nature, because in nature resources are limited, so exponential growth cannot occur. Logistic growth model is more realistic, which is followed by most of the species of the organisms. Now, next topic is census. What is census? Census is the official counting of population, and it is the preparation of the data of age groups, birth rate, death rate, sex ratio, literacy rate, एक्सेट्रा. मीन्स सेंसस एक ऐसी ऑफिशियल काउंटिंग है पॉपुलेशन की जिसे हम काउंट करते हैं अकॉर्डिंग टू, ये देखने के लिए काउंट करते हैं कि किसी भी कंट्री में या किसी भी स्टेट में या कहीं भी किसी एरिया में पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम में अकॉर्डिंग टू दी बर्थ रेट एंड डेथ रेट. मीन्स हमारी गवर्नमेंट भी
इंडिया के जो पॉपुलेशन, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हर साल इंडिया की जो है पॉपुलेशन को काउंट करते हैं बाय काउंटिंग दी बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ये देखते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ, और एक रिपोर्ट बनती है सेंसस की, एक सेंसस रिपोर्ट बनती है जिसमें इस इंक्रीज, जो पॉपुलेशन की इंक्रीज है उसके साथ साथ उसमें और भी डेटाज इंक्लूड किए जाते हैं कि हर एज ग्रुप में कितने इंडिविजुअल्स हैं, मीन्स रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में कितने लोग हैं। इसके साथ साथ जो इंडिया की सेक्स रेशियो है वो क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, मीन्स इन शॉर्ट सेंसस इज द ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन। नाउ नेक्स्ट इज लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। अब देखेंगे अगर किसी भी स्पीसीज के पॉपुलेशन की लाइफ हिस्ट्री में, तो दे हैव evolved to maximize their reproductive fitness, or this reproductive fitness is also called as Darwinian fitness. Reproductive fitness means उन्होंने evolution दिखाया, evolution ये या फिर वो evolve हुए to increase their R value. Higher R value का मतलब कि अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाना, कि वो जो पर्टिकुलर हैबिटेट में रह रहे हैं वहाँ के सारे एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस के बावजूद वो अपनी स्पीसीज की जो कंटिन्यूटी है, जो पॉपुलेशन है, उसको मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ बढ़ा सके। बहुत से अलग अलग स्पीसीज जो हैं एनिमल्स के, उन्होंने वो अलग अलग वेरिएशंस, मतलब बहुत अलग अलग चेंजेस उन्होंने इवोल्यूशन के दौरान दिखाया। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑर्गेनिजम्स breed only once in their lifetime, like bamboo tree. Some other organisms used to breed many times during their lifetime and used to produce large sized offsprings, like birds, mammals, and some of the organisms used to produce large number of offsprings, but their offsprings are very smaller in size, like oysters, fishes, etc. Now, according to ecologist, ये जो लाइफ हिस्ट्री में कैरेक्टर्स में, ऑर्गेनिजम्स की लाइफ हिस्ट्री में जो चेंजेस आए हैं, दिस इवोल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द कॉन्स्ट्रेंट्स imposed by the abiotic and biotic components of the habitat in which they used to live. Means ये जो इवोल्यूशन सारे आए हैं, ये जो भी एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स की जो कमियां हैं उसे ओवरकम करने के लिए, उसे ओवरकम करके अपनी स्पीसीज की जो पॉपुलेशन को बढ़ाने की जो एबिलिटी है उसे इंक्रीज करने के लिए आई। क्योंकि जिस भी हैबिटेट में स्पीसीज या ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वहाँ के रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, और जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है वो रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं। तो अगर कोई भी स्पीसीज अपनी एबिलिटी बढ़ाए और अपनी एबिलिटी ऐसी चेंज करे कि वो वहाँ के सारे रिसोर्सेज को यूज कर सके बाकी स्पीसीज से ज्यादा अच्छे तरीके से, देन इट विल easily increase its population. Okay, so that's all for this video. In next video I will discuss about the population interaction topic, means how organisms present or living in the same habitat used to interact with each other. Till then, stay safe, stay home, use mask, and don't forget to sanitize yourself. Have a nice day.